जय श्री राम। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को नमन करता है। मैं हूं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर जेपी सर and my contact number is 8917395368। सो जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये जो पार्ट ऑफ द स्पीच का जो सीरीज चला रहे हैं, तो उस सीरीज का आज हम तीसरा भाग पर पहुंच गए हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना जा रहे हैं वो बहुत ही खास होने वाला है। बिकॉज यू नो द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेक्स अस स्ट्रांग, but without backbone our body is useless. So in that structure, whenever we are making sentence and we are speaking the sentence, we must have to know who is the vital part of the sentence formation. Who is that? So that is the vital part is your verb. You know, guys. So this is called the hero of the sentence. So whenever you are making a film, without hero, the film cannot be possible. Without backbone, our body is impossible. So this is why in the sentence formation case, verb is the most important thing and it plays a crucial role in the sentence formation. So today's topic on the verb. Okay. So all students, those are watching this video, first of all, I am giving heartily congratulations to them and wishing you all a very fine and prosperous future for you ahead. And you all are thinking yourself that zero. Yes, you think yourself as a zero, but in that process, start your conversation, try to learn properly. Then the day will come, you will reach at the zenith. तो ये सफर हमारा जीरो से जेनिथ का सफर हम तय करेंगे। सो स्लोली एंड स्टेडीली वी कैन विन द रेस। ठीक है, पहले हम नाउन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, नाउन वाज द नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन का वीडियो लेकर आए थे। प्रोनाउन दैट वाज द रिप्लेसिंग वर्ड एंड उसका इजीली याद रखने के लिए हम भी बहुत सारा तरीका अपनाए थे। जैसे कि नाउन पे हमारा था मैप सीसी और हमारा प्रोनाउन को आप बताए थे जैसे कि डायपर 3। ओके, तो इस तरह से हम वर्ब की ओर चलते हैं। वर्ब बहुत आसान होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक अ सेंटेंस। ओके, वर्ब प्लेज द वाइटल रोल। सो वर्ब का क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो मेनली हमारा दो तरह का वर्ब होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। So what are they? They are helping verb and your main verb. Okay, so whenever you are just learning this topic, so be sure your pen and copy should be ready there, because whatever I am writing, just you try to note down in your copy. That's why you can easily understand, as well as whatever I am speaking, just listen properly, because a good listener can be a good speaker. Okay, and what a good practitioner can be a good speaker also. So practice makes man perfect. So let's go to the topic. तो वर्ब क्या होता है? दो तरह का वर्ब में हम इसको कैटेगराइज किए हैं, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी फेस करते हैं। अच्छा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखिए, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बातें करते हैं, whenever we are talking about the helping verb, it once again categorized into how many types? The helping verb into two types, that is your auxiliary and your modal. Auxiliary and your modal. Okay, so what is auxiliary? Auxiliary verb means, okay, what is your auxiliary verb? Auxiliary verb means your be verb, have verb and do verb. Okay, auxiliary be verb, have verb and do verb. And whenever you are just talking about modals, there are 13 modals in English, you know. Okay, so whenever we will talk about modal in a different video, we'll talk about modals, so we will not discuss about. Simply you just know what is modal. Modals like your can,
and your could, shall, should, will, would, may, might. Okay, these are the modals. Okay, then whenever we will discuss about the main verb, this is the most important thing. So मेन वर्ब को हमने कैटेगराइज कर दिए हैं. बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं, हम 3 कैटेगरी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 के रूप में हम जानते हैं. लेकिन हमको ये आसान करने के लिए, सीखना हमको आसान हो जाएगा, इसीलिए हम उसको कैटेगराइज कर दिए हैं. ठीक है, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 में कैटेगरी किए हैं. तो उसमें क्या होता है देखिए, तो इसको हम अगर लिखेंगे तो फिर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वर्ब 6. तो इसको मतलब समझने की आसान के लिए, जैसे हमारा समझना आसान हो सकता है, हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं. तो इसको क्लियर करने के लिए हम इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं मेन वर्ब को. और मेन वर्ब बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. सपोज आई एम स्पीकिंग अबाउट वन वर्ब स्पीक. ओके, बोलना, स्पीक. तो आपका ये जो वर्ब 1 में हो जाएगा स्पीक. ओके, तो वर्ब 2 में हो जाएगा आपका, पास्ट फॉर्म में हम जानते हैं इसको स्पोक हो जाता है. वर्ब 3 में क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्पोकन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. अच्छा, तो वर्ब 4 में क्या होगा, दैट्स अ क्वेश्चन. यस, तो क्या होता है, जब वर्ब 4 हम यूज करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें एस लगाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीक्स. वर्ब 4 उसको स्पीक्स हो जाता है. अच्छा, वर्ब 5 में क्या होता है, उसको आईएनजी फॉर्म आ जाता है, स्पीकिंग. ओके, और जब वर्ब 6 में आ जाता है तो उसको आ जाता है टू प्लस स्पीक या फिर 2 प्लस वर्ब. ठीक है, और एक सेंटेंस और भी अगर हम लिखेंगे, सपोज आई एम राइटिंग प्ले, तो इसमें हो जाएगा प्लेड. ओके, ये भी हो जाएगा प्लेड, and this is plays. Okay, and this is playing. Okay, and this one is your to play. Okay, तो ये कैटेगराइज हो जाता है मेन वर्ब का, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, वर्ब 6. समझने के लिए, आसान होने के लिए इसको हमने किए हैं, तो इसको याद रख लेना. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग, टू स्पीक. और ये जो होता है हमारा स्पीकिंग जो होता है, उसको हम जीरन कहते हैं. वो जीरन के बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, इसको जीरन कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को जीरन हम कहते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, चलिए, तो अब इसको इरेज करते हैं और उसको आप वीडियो को पॉज करके आप देखिए, और इस वीडियो को मन चाहे प्यार दीजिए और अपने पढ़ाई को एक नई दिशा की तरह ले जाइए, और अपनी जिंदगी को भी अच्छी तरह से एक नई दिशा की तरह लेने में ये वीडियो आपको मदद कर सकता है. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, और सीखिए. क्योंकि हम देखिए, हमारा राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी होता है ना, तो हिंदी में हमें बात करने से बहुत अच्छा लगता है, और हिंदी में हम समझेंगे और इंग्लिश भी समझेंगे. हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर लैंग्वेज. So my dear students, just focus. It's a language. So language को language की तरह यूज करो, और लैंग्वेज को मतलब इतना डिफिकल्ट मत बनाओ. So take it easy. Okay? जितना तुम आसान तरीके से समझोगे उतना आसानी से तुम इसको यूज कर सकते हो, और हमारा ब्रेन भी एक्वेंटेड हो सकता है. और जब भी तुम सीखते हो, इस बात को ध्यान रखना कि हंस के, मन को खुश करके पढ़ाई करो और सीखो. क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन खरित होता है, उसको कहते हैं डोपामाइन. ओके, डोपामाइन जब ज्यादा निकलता है ना, तो हमारा सीखने की कैपेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाता है. तो इसीलिए सो बी अलॉट एंड बी हैप्पी एंड ट्राई टू लर्न. सो कीप ऑन योर हैप्पी लर्निंग. ओके, तो इस तरह से हमारा वर्ब का क्लासिफिकेशन हमने कर लिए हैं. तो अच्छा, जो हमने अभी बताए थे बी वर्ब. चलिए, तो बी वर्ब क्या होता है, और हाफ वर्ब क्या होता है, और डू वर्ब क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको लेना चाहिए. तो बी वर्ब में क्या आता है, देखिए, तो बी वर्ब में क्या जाता है, आपका आता है आम,
इज, आर, वाज, वेयर, बीन। ओके, तो ये हमारा हो जाता है। और कभी हमारा भी बिंग भी आता है। यस, बिंग, बिंग, बीन। ओके, ये हमारा बी वर्ब का, इसको याद रखना। आम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और बिंग। जब हम हाफ वर्ब के बारे में बातें करते हैं तो हाफ वर्ब में आता है आपका हाज, हाफ, हार्ड, और उसके हमारा हो जाता है हावी। ओके, देन has been, देन have been। ओके, ये हमारा हाफ वर्ब का हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं सेंटेंस में। फिर जब डू वर्ब आ जाता है तो डू वर्ब में आता है हमारा डू, डॉज, डिड। तो इसको लर्न कर लेना, इसको याद कर लेना, ये आसान होता है सीखने के लिए, तो हम उसको सीख सकते हैं। चलिए, ये जो वर्ब, बी वर्ब, हाफ वर्ब, डू वर्ब, इसको समझने के बाद तो वर्ब क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो वर्ब को हम कौन सी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेना भी जरूरी होता है। तो वर्ब को हम कभी कभी नाउन के तौर पर यूज करते हैं, कभी कभी वर्ब को हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, और कभी कभी हम वर्ब को भी जैसे कि टू प्लस इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ब कभी कभी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। सच में ये क्या होता है? हाँ, होता है, कभी कभी होता है। कुछ सेंटेंस के जरिए से हमको इसको समझ लेना चाहिए कब हमारा वर्ब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वर्ब्स यूज एज ए नाउन। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो वर्ब यूजेस एज नाउन। तो वर्ब को हम क्या करते हैं, आज नाउन कब यूज करते हैं। तो आज नाउन जब हम यूज करते हैं तो एक सेंटेंस में बोलता हूं तो जीरन भी उसमें आता है। जो जीरन के फॉर्म पर हम जब कर बोलते हैं ना, जैसे कि ओके ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओके, मैं आइटम राइट डाउन, रनिंग, रनिंग इज ए गुड हैबिट। ओके, रनिंग इज ए गुड हैबिट। ओके, इसको अभी हम अलग तरह के लिख सकते हैं। रनिंग को हम लिख सकते हैं टू रन। ओके, टू रन इज ए गुड हैबिट। ठीक है, टू रन इज ए गुड हैबिट या फिर रनिंग इज ए गुड हैबिट। तो यहां जो रनिंग यूज हुआ है, ये रनिंग आपका वर्ब नहीं है, ये होता है आपका क्या, ये नाउन है। दिस वर्ब, दिस इज एज ए नाउन, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीरांड। ओके, दिस इज योर जीरांड। ओके, योर जीरांड। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर रनिंग को हम नाउन के तौर पर अगर हम इसको लिख चुके हैं और इसको अगर हम वर्ब के तौर पर लिखेंगे तो शुरुआत होगा इट इज, इट से शुरुआत होगा। इट इज ए गुड हैबिट टू रन। ठीक है, अब जो ये तुम्हारा टू रन आ गया, ये रन आ गया तुम्हारा वर्ब। यहां पर रन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इट इज ए गुड हैबिट टू रन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर हम और एक सेंटेंस लिखेंगे या फिर बोल लेते हैं लिसनिंग इज बेटर देन स्पीकिंग, लिसनिंग इज बेटर देन स्पीकिंग। तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों, सुनना बेहतर होता है बोलने से, तो ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग वो भी तुम्हारा नाउन के रूप में आ जाता है। चलो, इसको साफ करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। ओके, सो verbs as an adjective। ओके, तो क्या होता है, verbs as an adjective। ओके, चलो, ये verb का होता है क्या ना, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल भी हो जाता है सेंटेंस में। एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, जो विशेष गुण को दिखाता है वो होता है हमारा विशेषण या फिर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, जो क्वालिटी को शो करता है, शो अप करता है, डिस्क्राइब करता है वो।
चलो, तो वर्ब्स एज एन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होता है, देखें मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। आई सॉ ए रनिंग लायन। ओके, व्हाट आई सॉ? आई सॉ ए रनिंग लायन। तो मतलब मैंने एक दौड़ता हुआ शेर को देखा। कैसा शेर है? तो ये शेर को विशेषित करता है कौन? रनिंग। आई सॉ ए रनिंग लायन। सो हियर द रनिंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, आई सॉ ए रनिंग लायन। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेनेवर वी आर आस्किंग क्वेश्चंस विथ हाउ ही रन्स, हाउ द लायन रन्स, तो उसका आंसर होगा इट्स ए रनिंग लायन। कैसा है? हाउ इज दैट लायन? सो दैट लायन वाज ए रनिंग लायन, मतलब दौड़ता हुआ शेर। ओके, सो जैसे हम बोलेंगे a speaking boy came to me and asked how he could learn English. Okay, a speaking boy came to me. A speaking boy. Okay, a speaking boy came to me and said how he could learn English. ओके, एक दौड़ता हुआ बच्चा मेरे पास आया और बोला, क्या बोला? दैट हाउ ही कुड लर्न इंग्लिश। ओके, तो मतलब वो कैसे इंग्लिश सीख सकता है। स्पीकिंग बॉय केम टू मी एंड सेड हाउ ही कुड लर्न इंग्लिश। सेड बोल सकते हो या फिर आस्क्ड बोल सकते हो, सेड या फिर आस्क्ड। ओके, ओके, एंड आस्क्ड हाउ ही कुड लर्न इंग्लिश। ओके, तो मतलब वो कैसे इंग्लिश सीख सकता है। तो यहां पर जो होता है स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग बॉय कैसा है? स्पीकिंग बॉय हियर इज आल्सो एडजेक्टिव, मतलब वो एडजेक्टिव तरह यूज हुआ है, स्पीकिंग बॉय। ओके, आर यू गेटिंग? ओके, वेल डन। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं, वर्ब यूजस इन्फिनेटिव। ओके, तो इन्फिनेटिव में कैसे इस्तेमाल होता है? वर्ब as इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इन्फिनेटिव में इस्तेमाल कैसे होता है उसको हम देखते हैं। टू हैव ए कॉपी, टू नोट डाउन, टू हैव ए कॉपी, टू नोट डाउन। टू नोट डाउन ये वर्ब है। ओके, ये नोट डाउन ये वर्ब है। टू के आगे में लगा है नोट डाउन। टू हैव ए कॉपी, टू नोट डाउन, मतलब तुम्हारे पास एक कॉपी होना चाहिए किसी को नोट डाउन करने के लिए। तो ये भी तुम्हारा हो गया क्या? वर्ब यूज्ड एज इन्फिनेटिव। चलो, उसके आगे हम चलते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब की तरफ चलते हैं। और फाइनेटिव तो कर सकते हैं, फिर इसको उसको हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर हम चलते हैं। सो फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब उसको हम देखते हैं। सो व्हाट इज द फाइनाइट वर्ब? ओके, इसको भी समझने में बहुत आसान होता है। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? सो फाइनाइट वर्ब द वर्ब व्हिच कम्स आफ्टर सब्जेक्ट एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। ओके, टेंस के हिसाब से, काल के हिसाब से ये परिवर्तन होने वाला को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो काल के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। दिस इज द मेन पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। Okay, so when we will get the sentence and it will be very clear and very easy to understand. Okay, okay, I go there, I go there
I want to go there. Okay, so what is finite verb and then what is non-finite verb? It should be clear. So I go there मतलब मैं वहां गया. So I go there, this is your subject part, subject. Okay, सब्जेक्ट के बाद में जो आता है तो फिर क्या हो गया, गो, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब. क्लियर? आई गो देयर, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब. ओके, एंड हियर देयर आर टू वर्ब्स, वांट एंड गो. चलो, दिस वांट इज योर फाइनाइट वर्ब and this is your non-finite verb. Clear guys? Okay, so this want is your finite verb and this go is your non-finite verb. अगर हम टेंस के हिसाब से इस सेंटेंस को परिवर्तन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर टेंस के हिसाब से इसको परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा आई वेंट देयर. ओके, व्हाट इट विल बी, आई वेंट देयर, मैंने वहां गया. चलो, तो मतलब देखो ये टेंस के हिसाब से चेंज होने वाला कौन होता है, वो होता है फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में आता है. जब हम इसको चेंज करते हैं, ओके, आई वांटेड टू गो देयर, दिस सेंटेंस विल बी व्हाट, आई वांटेड टू गो देयर. आई वांटेड टू गो देयर, दैट मीन्स यहां पर जो तुम्हारा क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू, तो किसको क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस. अकॉर्डिंग टू टेंस फाइनाइट वर्ब चेंजेस. ओके, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वर्ब, ओके, अकॉर्डिंग टू टेंस फाइनाइट वर्ब चेंजेस बट नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस. ओके, टेंस के तौर पर अगर हम देखेंगे तो फिर क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है. लेकिन टेंस के जब टेंस परिवर्तन हो गया, वांटेड मतलब पास्ट को हो गया, तो फिर ये वांट का वांटेड हो गया. लेकिन ये जो वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब गो, ये रिमेन सेम. तो ये गो यहाँ पर स्थिर रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियरली वो रहा है. क्लियर? आई थिंक क्लियर गाइस. ओके, चलो इसको हम क्लियर करके हम थोड़ा सा नॉन फाइनाइट वर्ब के क्लासिफिकेशन करते हैं. ये क्लियर हो गया? आई थिंक इट विल क्लियर. ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, बस फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आता है, याद रखो. और जो फाइनाइट वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज हो सकता है और वो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है. थोड़ा सा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं. सो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा क्लासिफाई. तो अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की क्लासिफाई करेंगे तो नॉन फाइन वर्ब का क्लासिफिकेशन हमारा 3 फॉर्म में आ जाता है. उसमें जीरंड आता है और फिर हमारा आता है पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आता है और हमारा आता है क्या, टू प्लस इंफिनिटिव के रूप में वो आता है. चलो, तो नॉन फाइनाइट वर्ब का याद आता है आपका जीरंड, पार्टिसिपल. ओके, जीरंड आ जाता है आपका, पार्टिसिपल आ जाता है और आता है क्या, टू प्लस इंफिनिटिव. टू प्लस इंफिनिटिव. ओके, जीरंड, पार्टिसिपल, टू प्लस इंफिनिटिव 3 प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं. तो जीरन फॉर्म बहुत इजी होता है, जिसमें आईएनजी फॉर्म रहता है, वो जीरन है. और जो पार्टिसिपल फॉर्म होता है तो इसको थोड़ा अलग से हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा. तो ये जो होता है तो इसमें थोड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ये होता है पास्ट पार्टिसिपल और ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हो जाता है 3 होता है. और हमारा होता है टू प्लस इंफिनिटिव में ज्यादा कुछ नहीं होता है. चलो, जीरन में क्या होता है देखिए,
तो जीरन में आईएनजी फॉर्म, ओके, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो इसमें जैसे बोलेंगे हम स्पीकिंग, लिसनिंग, ओके, स्पीकिंग, ओके, यू गोइंग, रनिंग, ये सब जीरन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल ज्यादा भी फर्क नहीं करता है, वही सेम है, वो आईएनजी फॉर्म, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल इज योर वर्ब 3। वी हैव डिस्कशन अबाउट वर्ब 3 थर्ड फॉर्म, ओके। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है, क्या होता है तुम्हारा, उसमें हैविंग के साथ वर्ब 3 आता है, हैविंग वर्ब 3, ओके। हैविंग के साथ वर्ब 3 आते हैं, वो परफेक्ट पार्टिसिपल आता है, हैविंग वर्ब 3। टू इंफिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब 1, हर वक्त वो वर्ब 1 के साथ 2 लगता है, टू रन, टू प्ले, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज ऑल कंप्लीटेड अबाउट द वाइटल टॉपिक वर्ब। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किए हैं इस वीडियो को, और आपने इसको कभी भी स्किप ना करके पूरा अगर देखेंगे तो मतलब पूरा आपका क्लैरिटी आ जाएगा वर्ब के ऊपर, ठीक है। सो प्लीज गाइस वॉच केयरफुली एंड राइट डाउन इन योर नोट। और जो हम सीरीज चला रहे हैं पार्ट ऑफ द स्पीच, उसको हम धीरे धीरे आगे चलाएंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू।